ओके, हम स्टार्टिंग द रिकॉर्डिंग। सो बेसिकली गाइस, आज हम लोग हमारा लेक्चर 7 आज ऐसे हो गया है। तो आज हम क्या करेंगे, आज का लेक्चर आई ट्राई टू कीप इट ब्रीफ। आज सारी चीज़ें हम नहीं कवर कर रहे। आज के लेक्चर में वी आर प्लानिंग टू कवर द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोग को याद होगा, हमने पिछली क्लास में हम लोग बिफोर द क्विज पिछले हफ्ते जो है हम लोग आई स्टार्टेड विद द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शंस के डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी होती क्या है, and then we covered the probability distribution function, which is a PDF, and then I showed you the CDF, and again then I revised the concepts of expected value, the variance things, and the expected the linear transformations that were covered in our last class. आज की क्लास में we will be covering the discrete probability distribution. उसके अंदर there are different type of probability distributions. The most prominent is the uniform distribution, and the other one is there's a binomial distribution, in which we will cover the Bernoulli process, and then we will try to compute the binomial probabilities, and lastly we will be calculating the multinomial probability. So that's the agenda for today's class. So let's start with the most simple one, which is a uniform distribution. So what is a uniform distribution? There's nothing fancy about this. As the name suggests, it's a very simple thing. The uniform distribution is in which there's an equal probability of everything. यानी they ऐसा नहीं है कि यानी जैसे कार्ड्स आप ड्रॉ करते हो तो कार्ड में there's a different probability for every card. The red card probability is different from so drawing a black jack is the probability of drawing a black jack is different from drawing a red card. So each event has its own probability. So the weight is different for each thing. In uniform distribution, that's not the case. Uniform distribution, you will find equal probability of everything being happening. So the two examples that comes out of my head, and I've written it over here as well. And that one is, it's a fair coin toss. The probability of getting a heads is equal to the probability of getting a tails. Or if you roll a dice. So with the probability of getting a 6 or 5 or 4 or 3 or 2 or 1, it's all going to be same. It's not going to change. So these are the two examples that comes into my mind at this time. So when we roll a fair dice, the possible sample space is just the sample space size is 6. So the probability of anything happening is so जब भी हम sample distribution की बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, so there are six scenarios. So the K is 6 over here. ये आखिरी वाला 6 नहीं, basically it's a sample space size. So it's the 6 over here. Sorry, मैं माउस उधर था. तो 6 आपका यहाँ पे इस तरह से, आपका जो यहाँ पे K आ रहा है, K is basically the sample space size. So in this case, our probability of anything happening is 1 over 6. आप कुछ भी लेके आ जाएं, कोई भी इवेंट लेके आ जाएं, आपके सैम्पल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 है, आप 1 6 से कोई भी इवेंट लें, उन सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है. ठीक है. Whenever we are talking about the distributions, the probability distributions, we are always concerned about two things. What are those two things? Can anyone tell me? What are the two things that we are always concerned about when we see the probability distributions? Anyone? सर पहली तो चीज है कि उन सबका सम शुड इक्वल टू 1 और maybe मेरे दिमाग में यही आ रही, maybe it's too early in the morning, but yes. Yeah, you are right. I guess सुबह का वक्त है, मैं भी थोड़ा सा so we are all freshing up. So basically आपने सही बात बोली है कि their sum should be 1, जो सबसे पहले important चीज़ थी. लेकिन I was expecting something different, लेकिन you are right. So basically what I wanted in return is कि we are interested in two things when we see the probability distributions. जो आप बात करिए वो तो है कि probability distribution बनती कैसे है. What I'm asking is कि हमें how we are trying to analyze those distributions. So there are two ways to analyze the distribution. One is by using the expected value,
the mean, and the other is the variance. So these are two ways that we want to do, that we want to analyze over there. आगे चलते हैं, तो आगे एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी हम निकलेगी किस तरह से, एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी निकलेगी आपकी, इसका सिंपल आपका एवरेज लेकर, मैंने एवरेज इसीलिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी इक्वल है। अगर आपको याद हो, मैंने जो दूसरी एक्सपेक्टेड वैल्यू ली थी वो ये थी ई एक्स, और वहाँ पर मैंने कहा था कि आप प्रोबेबिलिटी को उसके इवेंट से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। जो मैंने आपको, अगर आपको पिछले लेक्चर से मैं आपको याद हो, मैंने आपको ये आपको फॉर्मूला लिखवाया था एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलवाने के लिए। इसी तरह आपकी वेरिएंस जो थी, आपका सिग्मा स्क्वायर जो था, वो था जनाब पी आई का स्क्वायर इनटू एक्स एक्स आई माइनस सी एक्स का स्क्वायर। इस तरह से हम वेरिएंस निकालते थे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू का सम, इस तरह हमने हमने जो सी प्रोबेबिलिटी हमने ऐसे निकाली थी, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली थी और साथ हमने वेरिएंस निकाली। लेकिन इस केस में आपको मैंने एक्सपेक्टेड निकालना था कि अब सिंपल जो भी आपके इवेंट्स के आते हैं उसका और के, ठीक है। तो लिहाजा अगर आप कॉइन टॉस देख रहे हैं, या फिर आप अपना कॉइन टॉस में क्या हो सकता है, कॉइन टॉस में आपके दो इवेंट्स है, 1/2 प्लस 1/2, इट्स 1, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिंपल जो है, अगर आपकी क्वालिटी सेम ना होती फिर आपको यहाँ पे इसको अलग से एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे आपका बिल्कुल सिंपल है, और आपकी वेरिएंस भी बड़ी सिंपल से तरीके से आप निकाल सकते हो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में टू कंप्यूट वेरिएंस और द सैंपल स्पेस, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। लेट मी नो इफ एनी क्वेश्चंस अप टिल हियर। Are we clear? Yes, sir. सर बस ये जो एक्स आई माइनस ये जो सिंबल है, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? एक्स बता रहा है राफे, एक्स बता ये रहा है कि ऑफ ऑल सैंपल ऑफ ऑल इवेंट्स। नहीं सर, वेरिएंस के अंदर वो जो यू वाला सिंबल है उसका पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये इट्स बेसिकली मीन, अगेन द एक्सपेक्टेड मीन। ये एक्सपेक्टेड मीन ही है, ये एक्सपेक्टेशन है, मीन एवरेज वैल्यू, ठीक है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, तो बेसिकली आज हमें भी आज का लेक्चर आई एम थिंकिंग दैट इट वोंट बी दैट लॉन्ग, बिकॉज आई हैव टू डू समथिंग एल्स टुडे टू डू, और थोड़ा सा लेक्चर भी थोड़ा सा आज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो मूविंग फॉरवर्ड, सो बेसिकली हम लोग बर्नौली प्रोसेस पे बात करते हैं। बर्नौली प्रोसेस क्या जनाब? बर्नौली प्रोसेस आपको बताता है कि आपका एक्सपेरिमेंट के जो इवेंट्स हैं वो कितने हो सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अभी तक आपने जितने भी इवेंट्स के उसमें ईच एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ एन रिपीटेड ट्रायल्स, तो यू विल फॉर एग्जांपल टेक अ कॉइन टॉस, ठीक है। आप कॉइन टॉस एन टाइम्स कर सकते हो, ठीक है, या डाइस को भी लेकर आप कॉइन टॉस एन टाइम्स कर सकते हो, ठीक है। Each trial will be classified as either success or failure. You can either get a head or tail, and you have to classify one of that event as a successful event, ठीक है। And then the probability of success remains constant in those, यानी coin toss में heads आने की probability जो है it should be same, and we know कि it's going to be same, and the repeated trials are independent. If you get head one time, it doesn't mean that you will get head again. Again, the probability remains the same. The likelihood of failure or chance are going to the same, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। जी आदिल। सर जरूरी है कि सिर्फ दो आउटकम्स हो या फिर मल्टीपल आउटकम्स हो सकते हैं? इस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगेन इन दिस केस देयर इज ओनली गोइंग टू बी टू आउटकम्स. When we are going to cover the multinomial probabilities, then in that case we are going to relax that assumption.
ठीक है, are we good? Yes, sir. Okay, so let's look at the question. तो गाइज मैं क्या करता हूँ, एक खाली कागज भी इसमें अपने के साथ ओपन कर लेता हूँ। जी हसन। Sir, ये sorry, Bernoulli and binomial, जी ये are they synonymous? जी, इस केस में सिनोनिमस है। बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बर्नौली प्रोसेस जो है ना, उसको उस तरीके से बाइनोमियल फार्मूला जो बनाया जाता है उसको उस तरीके को कहा जाता है। तो दे आर सिनोनिमस इन दिस केस। ये case specific synonymity है या मतलब इसके अलावा कुछ synonymous नहीं होंगे अगर नहीं, this is the special case of binomial distribution. फर्ज करें कि This is the Bernoulli. this is a special case of Bernoulli. जी, Bernoulli is a special case of binomial distributions. अभी हम इसको हम थोड़ा सा अभी हम इससे ना हम वो करेंगे अभी हम इसे बर्नौली ऊपर जाएंगे। तो बर्नौली इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन हम इसको थोड़ा सा भी आगे एंट्रेंस में भी इसमें अभी और चीजें इंप्रूव करेंगे अभी। अच्छा गाइज, ये सवाल पढ़े आप लोग और आई विल गिव यू लाइक 5 minutes to think on it and then I'll start. ठीक है, I'm pausing the recording for now. आदिल यार मुझे तो रिमाइंड करवा देना 5 मिनट के बाद कि मैं रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू करनी है। Okay, sir. Okay. जी, how many outcomes are possible guys? कितने आउटकम्स पॉसिबल है? आदिल, 2 outcomes possible है तो, sir. लेकिन टोटल आउटकम ये सिर्फ एक के है ना, और हमारे पास आइटम्स कितने हैं टोटल? ड्रॉज अगर कह लें तो 3 है। 3 है ना, तो देयर आर टोटल 8 आउटकम्स। ये हमारी वहीं से बात जहाँ से हम शुरू हुए थे। सो एक प्रोडक्ट के लिए जो है हमारे पास देयर आर 2 आउटकम्स, लेकिन व्हेन इट कम्स टू 3 आउटकम्स तो उसके बाद फिर 2⁻3 इट्स रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, तो उसमें 2⁻3 हो जाएगा 8, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, व्हाट वैल्यूज रैंडम वेरिएबल कैन टेक। अब यहाँ पे ना इस सवाल को पढ़ने के लिए ना यू नीड टू रीड दिस लाइन, अ डिफेक्टिव आइटम विल बी कंसीडर्ड अ सक्सेस, ठीक है, अ डिफेक्टिव आइटम विल बी कंसीडर्ड अ सक्सेस। तो इफ डिफेक्टिव आइटम, जी हदीजा आप इस सवाल का जवाब दोगी? हाँ जी सर, वैल्यूज में वो ये सक्सेस और फेलियर है जी, वैल्यू मैं बताना चाह मैं वैल्यूज को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूं, ठीक है। वैल्यूज में कि आपका रैंडम वेरिएबल क्या लेगा, अगर तो वो डिफेक्टिव है, तो वो सक्सेस है, ठीक है। सक्सेस का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू 1 होगी, अगर वो डिफेक्टिव नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। इज दैट क्लियर? तो हम सर हम बाइनरीज में लाइक मुझे समझ नहीं। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यानी खदीजा आप क्या करो, आप मुझे बताओ कि टोटल आउटकम्स में आप ना मुझे आउटकम लिस्ट करो, ठीक है। तो मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ और आपने ना मुझे आउटकम्स आपने पूरे काउंट करवाने मुझे, आप टोटल आउटकम्स कितने? टोटल आउटकम्स तो 8 हैं सर। 8 है, ठीक है। तो अब टोटल आउटकम्स है इज 8। अच्छा, अब आपने ना खदीजा मुझे सारे वो आउटकम्स में लिस्ट करवाने हैं आपके, मुझे यू नीड टू लिस्ट दोस आउटकम्स, ठीक है। पहला आउटकम क्या होगा? हमने वो 3 मशीनें देखी, वो 3 मशीनें, उनको 3 मशीनों को क्या हुआ? तीनों मशीनें क्या हैं? तीनों की तीनों सक्सेस। तीनों की तीनों सक्सेस है, यानी डिफेक्टिव डिफेक्टिव डिफेक्टिव, ऐसे ही है? बिल्कुल। इसकी यानी आपका वेरिएबल जो है, आपका वेरिएबल एक्स जो है उस टाइम पे, वो वैल्यू क्या देगा आपके लिए? 1 + 1 + 1 इट्स, ठीक है। अगला सिनेरियो क्या होगा खदीजा? अगला मैं तो पहले सक्सेस
तीनों फेलियर्स कर दूंगी। तीनों फेलियर्स कर दोगे, अच्छा चलो ठीक है, तीनों फेलियर्स कर सकते हैं, नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। इसमें क्या होगा आपका वैल्यू? 0। ठीक है, आगे आप क्या करें खदीजा? सक्सेस फेलियर, सक्सेस देन सक्सेस सक्सेस फेलियर। फेलियर, इसकी वैल्यू क्या रखें? 1 + 1 + 0 इट्स 2। 2। गाइस आर यू फॉलोइंग? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सक्सेस को ऐड कर रहा हूँ और फेलियर्स को मैं 0 अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आगे चलें, सक्सेस फेलियर। सक्सेस फेलियर सक्सेस, ठीक है, फिर सक्सेस फेलियर। ठीक है, फिर सक्सेस फेलियर ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ जनाब, यहाँ पे आपके हो गए, फिर 2 आ गए। ऐसा करते थोड़ा सा इनको ना ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि ना ऑर्डरिंग से थोड़ा काम वाले आसान हो जाएगा। पहले हम शुरू कर लेते हैं NN से, ठीक है। आप ठीक है रुतीजा, मैं तो चाह रहा हूँ कि एक ना एक ऑर्डर आ जाए, नहीं तो बट हम सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे कितने आउटकम्स हमारे रहेंगे, ठीक है। पहला आउटकम हमारा है सारे डिफेक्टिव थे 0, उनमें से फिर एक ठीक हुआ, NND 1। फिर तीसरा सिनेरियो बना हमारा NDN 2। फिर चौथा सिनेरियो बना हमारा DNN, ठीक है। अभी भी बना, सॉरी ये 1 ही है, अभी भी ये 1, अब यहाँ पे भी अभी ये 1 ही है, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, फिर जो खदीजा ने हमें हाईलाइट करवाए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, उसमें 2 ठीक हो गए, ठीक है, DDN, ठीक है, DDN हो गया। अब उसमें यहाँ पे 2 हो गया। फिर अगला चलते हैं, अगले में क्या होगा जनाब, DND, फिर 2 आ जाएगा। और आगे क्या होगा, आगे होगा हमारा NDD 2। और 8वां हमारा क्या होगा, DDD। तो दिस इज द वैल्यूज, ठीक है। ये आपके आउटकम्स हैं, ये आपके आउटकम्स हैं, और ये आपके जो हैं, ये आपकी रैंडम वैल्यू है। आपका रैंडम वेरिएबल ये वैल्यूज ले सकता है, योर वेरिएबल कैन टेक ऑल दीज वैल्यूज। इज दैट क्लियर? सर मेरा एक सवाल है। जी जी खदीजा, फिर हम अहमद की तरफ जाएंगे। जी खदीजा, सॉरी मैंने हैंड नहीं रेज किया, मुझे कोई मसला नहीं। लगा मेरा सवाल है कि इसमें तो हमारे पास 2 वैल्यू थी, तो हमने 0 और 1 दे दिया, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा सक्सेस है या फेलियर है। तो अगर हमारे पास, बट इज इट बिकॉज ये है ही बायनोमियल ये है ही डिस्ट्रीब्यूशन कि बायनोमियल, हम 0। ये है ही बायनोमियल, इसलिए मैसेज आ रहे हैं। जब मल्टीनोमियल आएगा तो हम ये वाली चीज़ हम PDF का मैसेज नहीं हम असाइन करेंगे। ओके ठीक है। उसमें उसमें देवर डिफरेंट सिनेरियो। अहमद, Sir, why does order matter? Like combination में देखना है इसमें। ऑर्डर डजंट मैटर इन दिस केस, ऑर्डर डजंट मैटर। मैंने आउटकम्स इस तरह से लिखे हैं जिस तरह से खदीजा भी लिखवा रही थी, इट वाज टोटली फाइन, ठीक है, इसमें कोई गलती कोई नहीं थी। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड कंफ्यूजन। ऑर्डर डजंट मैटर इन Okay, दिस केस, ठीक है। यानी okay. आप जिस भी ऑर्डर में आप देख लो, वो ऑर्डर तो वो सेम ही सेम है। मैंने से भी यहाँ पे इसको ना, ये इसकी मैंने इस अरेंजमेंट को मैंने नोटिस कर रखा है मैंने कि वैल्यूज जो है ना वो सेम है, यानी वैल्यूज कंसिस्टेंटली इंक्रीज डिक्रीज कर रही है। इस तरह से ना वो मैं देख रहा था कि शायद बाद में कंफ्यूजन हो सकती थी कि अच्छा यार ये 0 2 8 क्या हो रहा है, लेकिन हम ऐसे भी जा सकते थे। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अच्छा अगला सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एग्जैक्टली टू डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है। इन दिस केस हम बल्ब ले सकते हैं या ऐसे हम ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ डिफेक्टिव पीस है 25%, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव पीसेस? नाउ दैट दिस इज वेयर दिस गेट्स ट्रिकी। इसका मतलब क्या हुआ जनाब, 2 डिफेक्टिव पीसेस अगर हम निकालें हैं, 2 डिफेक्टिव पीसेस, इसका मतलब है कि हमारा एक जो है वो ठीक होगा उनमें से। तो 2 डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी क्या है जनाब? 25/100। तो इट्स 25/100, क्योंकि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। 25/100 into 25/100 into 75/100, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बल्ब्स and 1
वन नॉन डिफेक्टिव पल। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकलेगा गाइस आंसर? नहीं, इसमें तो खदीजा, इसमें तो बल्ब भी, जो बल्ब है वो है ही हमारे पास, उसमें तो है ही 3, और उसमें प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन उसमें है नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको प्रोबेबिलिटी बता दी, तो देयर इज नो नीड टू गो इनटू द कॉम्बिनेशन। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 3/4 है, 3/4 इंटू 7, ये, और सॉरी 1/4 तो 3/64 और बन जाएगा। 3/4, थैंक यू। तो ये बन जाएगा 3/64। लेकिन इसमें क्या गलती है? कैन एनीवन टेल मी दिस? ये 3/64 मैंने निकाला है, लेकिन इसमें मसला क्या है आदिल? सर आप असूम कर रहे हैं कि सिर्फ शुरू में 2 निकलेंगे और उसके अलावा किसी और ऑर्डर में नहीं निकल सकते। बिल्कुल, यहाँ पे ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मैंने कहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बल्ब आउट ऑफ 3। मैंने ऑर्डर नहीं बताया कि पहले निकालें दूसरे निकालें। इस केस में आदिल ने जो चीज़ पॉइंट आउट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1/4 तो मैं यहाँ पे पहले बोल रहा 2 निकालिए भी नहीं हुआ। इसमें 3 सिनेरियोज हैं जो अब जैसा कि हमने यहाँ पे लिख दिया, और आई दैट वाज द रीज़न मैं चाह रहा था कि मैं उसको ऑर्डर में लिख लूँ ताकि बताने इजीली मेरे लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 3 केसेस हैं, यहाँ पे ये 3 केसेस हैं, यहाँ पे एक केस नहीं है ये, यहाँ पे ये 3 केसेस हैं ये। ठीक है, 3 केसेस में यहाँ पे क्या होगा, 3 केसेस में 2/2 2 2। ठीक है, ये जो मैंने ये डी जो है ना वो, ये मैंने भी इसका एक का ड्रॉ किया, मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा वो भी यही निकलेगी, इसकी निकालूंगा इसकी भी वही निकलेगी। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी है इस फाइंडिंग डिफेक्टिव पीसेस की वो है जनाब 9/64। वो कैसे है? 3 को मैंने इन केसेस को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, और यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब शुरू हो रही है। दैट्स वाई मैंने कहा था कि मैंने वो सवाल उस टाइम फॉरन लिख दिया कि यार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालो आप साथ ही। ठीक है, आपका यहाँ पे एक्स है, आपका रैंडम वैल्यू वेरिएबल जो है वो कौन कौन सी वैल्यूज दे सकते हैं दाऊद? सर ये जो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैन इट नॉट बी, ये जो 2 डिफेक्टिव पीसेस वाला केस है, इट कैन नॉट बी 3 कॉम्बिनेशन 2 का आउटकम निकालें और फिर उसको प्रोबेबिलिटी के साथ कुछ प्ले करें? उसकी वजह बेसिकली ये है कि देखो, वो वाला केस जब हम कॉम्बिनेशन में जब कॉम्बिनेशन में लगवाता हूँ ना आपसे, तो उसमें मैंने आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दी होती। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी एक प्रोबेबिलिटी दी, मैंने ऑलरेडी आपके लिए वो काम आसान कर दिया है, यानी यू डू नॉट नीड टू गो इनटू दैट थिंग। आपको सिंपल प्रोबेबिलिटी को बस मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि डिपेंडेंट रूल्स है ना। उस केस में जो सवाल एक क्विज में आया था उसमें मैंने आपको प्रोबेबिलिटी नहीं दी थी, उसमें मैंने आपको टोटल बल्ब बता दिए थे। इस केस में देखो मैंने आपको क्या किया, इस केस में मैंने आपको तय के दिया 3 आइटम्स दैट आर बीइंग क्लासिफाइड। एक ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको दे दी है, ये ना, यानी आपके पास 100 बल्ब पड़े हुए थे, उनमें से जो है ना 25 बल्ब खराब है, आपने 3 बल्ब पकड़ लिए। इट्स नॉट लाइक हमें 3 में से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें पूरे सैंपल में से प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस चीज़ की। ठीक है, हमें बता दिया कि हमने 3 बस प्रोडक्ट क्लासीफाई कर लिए, इसमें कॉम्बिनेशन में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं हम लोग। सर वो देयर इज, वो एक्चुअली क्या है कि वो कुछ always sometimes it appears the calculation is manual, sometimes a combination, and it's देखो all mixing up, it's all mixing up in the end. मैं उसकी वजह बताता हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। अब let's say can we combination के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? नहीं, हम इसमें कॉम्बिनेशन में नहीं जाएंगे, हम इसमें कॉम्बिनेशन में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी दे दी है ना। कॉम्बिनेशंस में, कॉम्बिनेशंस के रूल में हम जाते तब हैं जब व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन टू यू। आई एम नॉट आस्किंग यू टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, सो आई एम नॉट आस्किंग यू टू फाइंड द, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी उसमें केस में प्रोबेबिलिटी नहीं आपके पास थी, मैंने आपको ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी दे दी है कि यार एक ओवरऑल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको दे दी है। यू नीड टू, बाइनोमियल में आप क्या करना चाह रहे हो कि बाइनोमियल में यू नीड टू, यू आर अप्लाइंग इट ऑन अ लार्ज नंबर्स। उस केस में जब हम बात कर रहे थे, उस केस में तो सिर्फ वही एक सैंपल था, 20 में से 8 निकाल लिया और दैट्स इट। यहाँ पे ये केस नहीं है, यहाँ पर हम लोग इस केस को हम लोग अब एक्सपेंड करने जा रहे हैं। कॉम्बिनेशन हम तब लगाते हैं इसके ऊपर, इसमें भी कॉम्बिनेशन लगेंगे, इसमें भी कॉम्बिनेशन एक जगह पे लगेंगे, मैं अब इसको एक्सप्लेन करूंगा कहाँ पे लगेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालते हुए नहीं लगेंगे। ये प्रोबेबिलिटी जो है वो ऑलरेडी आपको मैंने दे दी है। जैसे टॉस, जैसे अब दाऊद हम टॉस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम कॉइन टॉस कर रहे थे, तो कॉइन टॉस में प्रोबेबिलिटी आपको पता है ऑलरेडी 1/2 है। ठीक है,
अगर मैं आपसे बोलूं कि यार कॉइन टॉस में आपने हेड्स निकालने हैं, आपने 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 हेड्स निकालने हैं, तो आप हेड्स में नहीं, आप कॉम्बिनेशन में जाओगे आप। यानी अगर मैं यहाँ पे सिंपल इस तरह से देखूं कि मैंने आपको हेड हेड दे दिया मैंने आपको, सिंपल गाइस, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे थोड़ा साइड पे हो रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर मैंने आपको हेड हेड्स दे दिए, ठीक है, तो हेड हेड्स निकालने के लिए आप कॉम्बिनेशन में नहीं जाओगे, कॉम्बिनेशन में कि यार हेड और टेल्स में से क्या आ सकता है, विल यू गोइंग टू दैट, यू नो कि हेड और टेल्स की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 ही है, यानी अगर इफ इट्स अ फेयर पॉइंट। तो यहाँ पे वो चीज़ है, आई एम नॉट सिलेक्टिंग थिंग्स, द थिंग इज दिस, मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करवा रहा, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है कि उन तीनों में से प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसके ऊपर की, यानी मैंने आपको ऑलरेडी एक जनरल दे दिया कि यार 25% प्रोबेबिलिटी है इसकी। सर मैं सॉरी, मुझे ये जो टू डिफेक्टिव पीस है, ये कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व हो सकता है वैसे? ये क्वेश्चन मैं सिर्फ नहीं, इस केस मैंने में नहीं हो किया सकता। नहीं है, आई एम जस्ट हाँ, आस्किंग। इस केस में नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी वो है, मैंने ऑलरेडी एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी है। अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी असाइन ना करता, फिर आपको निकालना पड़ता, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपको ना मैं सवाल दोबारा दिखाता हूँ, मैं सवाल दोबारा दिखाता हूँ, मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा अभी, ठीक है यार। दाऊद आर यू देयर? जी इस तरह से दाऊद right? देखो, मैंने यहाँ बोला द सिलेक्टेड आइटम्स विल बी क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। तो मैंने 3 आइटम्स तो सिलेक्ट कर लिए हैं, लेकिन मैं आपको वो जो 3 आइटम्स की मैं उसके अंदर का नहीं बता रहा मैं आपको कि उसके अंदर जो हैं डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं। इन दिस केस आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट देयर डिफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो 3 आइटम्स में से एक डिफेक्टिव है कि 2 डिफेक्टिव है, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। अगर मैं आपको ये बता रहा होता कि उन 3 आइटम्स में एक डिफेक्टिव है और 2 नॉन डिफेक्टिव है, देन यू कुड हैव यूज्ड द कॉम्बिनेशन थिंग। इन दिस थिंग क्वेश्चन में कॉम्बिनेशंस की वो बात हम अप्लाई नहीं कर सकते हम लोग। नहीं सर, मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि देर आर टोटल 8 आउटकम्स, राइट? अगर मुझे एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव पीसेस चाहिए तो इट्स अ 3 कॉम्बिनेशन 2, ठीक है जी? अच्छा, 3 कॉम्बिनेशन ओके, 2, सो ओके। 3 कॉम्बिनेशन 2 डिवाइडेड बाय 8 इज माय आंसर। 3 कॉम्बिनेशन 2 डिवाइडेड बाय 8 बाय 8 या लेकिन 3 कॉम्बिनेशन 2 में आप अगर आप इसमें भी थोड़ी सी एक गलती है छोटी सी। 3 कॉम्बिनेशन 2 में आप कर ये रहे हो कि आप 3 कॉम्बिनेशन 2 में आप डिवाइड, आप टोटल आउटकम्स आपने आपने क्या किए, आपने 8 डिवाइड कर लिए। यस, आई अच्छा, मीन नहीं 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 दो नहीं दो नहीं, डिफेक्टिव देखे, वो दो उसमें उसमें डिफेक्टिव उसमें आउटकम्स उसमें आने। उसमें 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 भी छोटी सी गलती है, मैं आपको उस गलती को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सर, देखिए देखिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने आपने ये यहाँ पे मैनुअल टेबुलेशन की है ना, यहाँ पे 3 आउटकम्स हैं जिनमें 2 आउटकम्स डिफेक्टिव हैं, राइट? आप 3 कॉम्बिनेशन 2 करेंगे, आंसर 3 है आपके पास, जो आपने भी मैनुअल कैलकुलेट किया, राइट? और मेरे पास आउटकम्स जो हैं वो 8 हैं, मतलब 3 कॉम्बिनेशन 2 आपने किया, अच्छा, लेकिन तो सर 3। लेकिन आप उसमें बताओ क्या कह रहे हो, उसमें आप ये कह रहे हो, उसमें एक छोटी सी गलती जो है उसमें मैं बेसिकली जो आप करना चाह रहे हो, जो मैंने 3/8 किया है, मैंने 3/8 कैसे कहाँ किया मैंने 9/64 कहाँ किया मैं तो ये देख रहा हूँ पहले। नहीं, आपने कहीं नहीं किया सर, मैं अपना वे बता रहा हूँ। अच्छा 3 ठीक है, मतलब नहीं 2 आप डिफेक्टिव आप पीसेस मुझे कह रहे थे इज। देखो 3C2 आप अगर आप कह रहे हो तो 3C2 में एक छोटी सी गलती है। ये पहली बात तो ये कि इसमें वो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट नहीं कर, इस तरह से प्रोबेबिलिटी मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है। मैं अब उस पर आता हूँ कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या था। 3C2 में आप बताऊँ कर क्या रहे हो, आपने सिर्फ 2 डिफेक्टिबल्स पकड़ लिए हैं, आप नॉन डिफेक्टिबल तो पकड़ ही नहीं रहे इसके अंदर। 3C2 के अंदर आप 3C2 में आपने वो बल्ब पकड़ लिया है जो कि डिफेक्टिव नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, इसमें 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 ना एक चीज़ आपने बताओ कि आपने अज्यूम किया, आपने अज्यूम ये किया है कि 3C2 जो आप कह रहे हो ना 3C2, तो आप कह रहे हो कि 3 में से आप 2 बल्ब पकड़ रहे हो। जब आप ये कहते हो ना 3C2 राइट सर, आप या मैं बताऊँ क्या 2 कह रहे डिफेक्टिव्स हो। लेने हैं नहीं जी, 2 नहीं डिफेक्टिव्स नहीं नहीं लेने हैं। नहीं नहीं नहीं, दिस इज वेयर यू आर रॉन्ग। 2 डिफेक्टिबल्स जब आप बात करते हैं ना 2 डिफेक्टिबल्स की, तो 2 डिफेक्टिबल्स में 2 नॉन डिफेक्टिव भी आ सकते हैं, 2 डिफेक्टिव भी आ सकते हैं। 3 बल्ब हैं, 3 बल्ब हैं, 3 बल्ब में से अगर आप 2 पकड़ रहे हो आप, तो उन 2 बल्ब में आपके डिफेक्टिव भी तो आ सकते हैं। जो 3C2 में आप अज्यूम बताओ क्या कर रहे हो, आप अज्यूम कर रहे हो कि 2 बाकी डिफेक्टिव ही हैं। दिस इज व्हाट यू आर अज्यूमिंग एट दिस टाइम। तो 3C2 8 नहीं हो सकता उसके बाद जी खदीजा।
सर तो इसी जस्ट बिल्डिंग ऑन टू व्हाट Tom is saying, हम्म। तो अगर हमारे पास इंस्टेड अभी तो जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि हम सी तक यूज करते हैं जो प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता होती, बिल्कुल अगर हमारे पास इंस्टेड होता कि 100 हैं, इनमें से 70 डिफेक्टिव हैं और 30 नॉन डिफेक्टिव हैं, हाँ तो फिर तब हम यूज कर सकते थे एग्जैक्टली कि फिर बताऊँ क्या होता है। फिर आप लोग यहाँ पे मैंने बताऊँ क्या किया। आई थिंक इसको सवाल को मैं इस तरह से अगर लेके चलता है, सवाल को मैं 25 मैंने आपको ऑलरेडी दे दी, 25% प्रोबेबिलिटी है। फिर आपको पहले प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी पड़ती है, आप उसको कंप्यूट करके लेके आते हैं, फिर आप उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे उसके केसेस बनाना शुरू करते हैं। बाय द वे दाऊद, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बाय द वे क्लास में अभी मैं क्लास में सबको अनाउंस कर रहा हूँ। एक सवाल क्विज में कैसा होगा कि प्रोबेबिलिटी यू विल कंप्यूटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑन योर ओन and then you will be applying it over here to compute the probability distribution. दाऊद का सवाल बहुत चला, जब दाऊद ने 3C2 पकड़ा है, उसने 3C2 में उसने सारी चीज़ें हमारी झंझोड़ी हैं उसने हमारी। 3C2 में सबसे बड़ी गलती हमारी यहाँ पे क्या थी? सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोग 3C2 में अज्यूम करेंगे 3 में से 2 खराब है। हमने कहीं भी ये बात नहीं बोली हमने। 3C2 में यहाँ पे 3C2 में कोई भी केसेस आ सकते हैं। 3C2 में आपके ये वाले केसेस भी आ सकते हैं जिसमें आपके 2 डिफेक्टिव पल्स हैं और 1 नॉन डिफेक्टिव है, एंड सेम दी अदर वे अराउंड। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी जिसको हमने करना। तो हम लोग करेंगे ये कि हम लोग क्विज में एक सवाल में रखेंगे ऐसा, जिसमें हम लोग ना इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग टू द सिनेरियो इन दैट केस कि अगर आपके 3 जो बल्ब यानी आपके यानी प्रोबेबिलिटी हम आपको आपने कंप्यूट कर ऑलरेडी आप सैंपल्स में से कर लोगे और फिर आप उसको एंड पे अप्लाई करना शुरू करोगे। तो दिस विल बी अ गुड क्वेश्चन। खदीजा, डू यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन ऑन दैट? नहीं सर। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें से चीज़ें रेस कर दूं क्योंकि किसी 2 वाली चीज़ को, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग में इसको लाजमी रखना क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 3C2 को याद रखना, 3C2 हम तब करेंगे जब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। इन दिस केस तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे डिफरेंट केस है, मुझे इंडिपेंडेंट इवेंट्स निकालने, इंडिपेंडेंट इवेंट्स निकालने। ठीक है, हम यहाँ पे हम आएंगे और हमने यहाँ पे उन इवेंट्स को हम लिख लेंगे। अब 9/64 जो है वो आपका है ऑफ फाइंडिंग 2 डिफेक्टिव पीसेस। ठीक है, तो फाइंडिंग 2 डिफेक्टिव पीसेस वाले केस में मेरा 9/64 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम इस पूरे हम टेबल को फिलअप कर लेंगे। उसी तरह से कि हमें हम मल्टीप्लाई करना होगा उस टोटल इवेंट्स के साथ। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी, अच्छा, और आप इसको सम करोगे ना जब आप इसे, तो इट शुड बी, खदीजा क्या होना चाहिए? 1। 1। ठीक है, ये जितने भी आपके इवेंट्स हैं इन सबको अगर सम करो तो शुड बी 1। अगर ये 1 नहीं आ रहा तो आपकी PDF आपने सही नहीं बनाया। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि यार कोई सिंपल तरीका होना चाहिए, यानी हमने हमने आउटकम भी निकाल लिए, हमने रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू भी निकाल ली, हमने प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली, एंड इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एग्जैक्टली नहीं, मैं अपने क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, आई वाज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग डाउट ओवर हियर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव पीस, हमने ये भी निकाला, ये भी हम निकाल सकते हैं उसी तरह से जैसे अभी हमने किया। ठीक है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने वो भी कर लिया। आखिरी सवाल जो है, इज देयर अ वे टू एक्सट्रैक्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फंक्शन टू मेक थिंग्स इजियर फॉर अस, यानी कोई सिंपल चीज़ भी हो सकती है जिससे हम ये काम कर सकते हैं। तो हम ना तो दोबारा इस सारे तरीकों को हम तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं और इसमें हम सोचते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। अभी इसमें देर आर लाइक 3 आइटम्स। ठीक है, उनमें से 2 डिफेक्टिव पीसेज हैं और हम उसमें हम निकाल के हम चले जाते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा ना इसको थोड़ा चेंज करते हैं और अभी आपको ना इसमें चीज़ें जैन सॉरी सर, आई लॉस्ट द ट्रैक। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहाँ पे कैलकुलेट की थी? वो जो आप कह रहे थे कि टोटल 1 बनेगी, वो जो चीज? टोटल 1 बनेगी, बिल्कुल। ओके ओके सर, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ना इस चीज़ को देखते हैं जनाब, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने हैं, एंड इट शुड बी इजी, यानी जिस तरह PDF हमने ना अभी तक हमने ना वो डिस्ट्रीब्यूशन निकाली, फंक्शन ही निकाला अभी तक हमने। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। ठीक है, अभी अगर आप नोट करो तो अभी आप लोग बताओ क्या कर रहे हो। अभी तक हम लोगों ने किया ये है कि हम लोग उस टोटल इवेंट्स को देख लेते हैं, वो टोटल इवेंट्स वो हुए कितने हैं। ठीक है, टोटल इवेंट्स को हम देखते हैं और साथ हम करते क्या हैं जनाब, हम साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को लेके आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अभी तक हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।
अभी तक ऐसे ही हुआ है ना। हमने 9/64 कैसे निकाला है? हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पकड़ी है। हमने 9/64 निकाला था, 3 यहाँ पे था, ठीक है, 3 यहाँ पे था। आगे आ जाओ, आगे आदिल, आगे कितने क्या हुआ था? हमने 2 डिफेक्टिव पीसेस निकालने थे ना हमें। देयर शुड बी 2 डिफेक्टिव पीसेस। तो 2 डिफेक्टिव पीसेस की प्रोबेबिलिटी हमने कैसे निकाली? जी सर। हमने कैसे किया? हमने यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है, और साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालना है, वो हमारी क्या निकली? 3/4। ऐसे ही हुआ है गाइस, यस सर। ठीक है। अब अगर मुझे एक पीस निकालना है, अगर मुझे अब यहाँ पे व्हाट इज फाइंडिंग एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव पीस, ठीक है, व्हाट इज फाइंडिंग एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव पीस, तो उसमें क्या होता है जनाब? उसमें भी देयर वर 3 इवेंट्स। देयर वर कितने इवेंट्स है गाइस? उसमें भी 3 इवेंट्स ही थे, ठीक है। 3 into 1/4 multiply by 3/4 into 2। अब तो देखो इसमें ना कुछ कुछ चीजें मुझे समझ आनी शुरू हुई हैं इसके ऊपर। पहली बात तो ये कि यहाँ पे ना डिफेक्टिव के पीसीस आ रहे हैं। पहले 2 डिफेक्टिव पीसीस तो यहाँ पे 2 आ जाता था। अब अगर यहाँ पे हमने एक डिफेक्टिव पीस हमने निकालना है, बट फाइंडिंग एग्जैक्टली 1 डिफेक्टिव पीस, अगर एक उनमें से एक डिफेक्टिव पीस है तो बकिया 2 नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बनना शुरू हो गया, देयर इज दिस फॉर्मूला। और यहाँ की अगर हम बात करें, ठीक है, और अब यहाँ पे अगर हम आ जाएं, तो यहाँ पर जनाब 3 हमें स्पेसेस फिल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात अभी दाऊद कर रहा था, अब वो यहाँ पे वो बात अब आएगी, ठीक है। डिफेक्टिव पीसेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, यानी डिफेक्टिव पीसेस कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि हमारी सक्सेस यहाँ पे डिफेक्टिव पीसेस है 3C2, ठीक है। 3C2 जब हमने किया था ना 3C2, तो ये बन के आया था हमारे पास। यहाँ पे स्केयर हो गया था ये, और यहाँ पे 1 हो गया था ये। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को इसको हम सिंप्लीफाई करना शुरू करें, और मैं आपको समझाने के लिए अब इस पे लेके हूँ, तो हमारा फॉर्मूला ये बन 3C2, यहाँ पे ये एंड बाइनोमियल फंक्शन आता है, उसमें प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 1 - p और n - x, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हमारा n जो है हमारा है, n हमारा जी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और वैल्यूज और रैंडम वेरिएबल कैन टेक, इन दिस केस इट वाज 3, ठीक है। सक्सेस निकालने के लिए अगर आपने 2 डिफेक्टिव पीसेस निकालने हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 2 यहाँ पे आ गई, जो यहाँ पे भी हो रहा है 1/4 इंटू 1/4, और n - x करोगे तो वो क्या निकलेगा? 1, ठीक है। और यहाँ पे आपकी 3/4 आ जाएगी, ठीक है। गाइस कैन यू मेक सेंस आउट ऑफ दिस थिंग? मैं इसको थोड़ा सा भी और भी आपके लिए इजी करता हूँ। सर जी आदिल। अगर इसको जो हमने अभी कंप्यूट किया है, जो ऊपर लिखा हुआ है टोटल इवेंट्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसको मैनिपुलेट करके इस फॉर्मूले की शक्ल में बना देंगे। इसी फॉर्मूले की शक्ल में ना, देखो आदिल मैं यही कर रहा हूँ कि टोटल इवेंट्स जो है बेसिकली ये कम्बिनेशन है बेसिकली, जी ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, ये वाली चीज जो है, ये बेसिकली ये बन रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये p की पावर x, क्योंकि मैंने कहा था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव पीसेस, तो उसमें क्या था 2 डिफेक्टिव पीसेस में मैंने यहाँ पे 2 लेके आ गया था मैं, ठीक है। 2 डिफेक्टिव पीसेस में यहाँ पे 2 आ गया, और साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो ये है, वो यहाँ पे ये आ जाएगा। अहमद सर 3C2 6 नहीं होएगा? लाइक हमने जी? पहले 3 को मल्टीप्लाई किया था उसके साथ। जी 3C2 6 नहीं होएगा? मतलब पहले 3 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे थे ना ये हाँ हाँ प्रोबेबिलिटीज को, तो 3C2 के बाद वो 6 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल 3 - 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। यार मुझे डराओ मत यार, 3 सही फैक्टोरियल होता है। ओके इजी, सॉरी। 1, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइटन अप। ठीक है, ये 3 जो हमने वो बड़े आराम से हमने निकाला ना, वो 3 जो आ रहा है वो वहाँ पर जो 3 इवेंट्स हैं वो एक और बेसिकली क्वेश्चन वो था 3C2 से बन रहा था।
हम वो चेक कर रहे थे कि पहले डिफेक्टिव होता है फिर 2 नॉन डिफेक्टिव होता है, मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा था ना कि डिफेक्टिव 2 पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, तो उसके लिए वो 3p2 नहीं होएगा, क्योंकि आपने कहा था जहाँ ऑर्डर मैटर करता है। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि उसमें यहाँ पे 3p2 क्यों नहीं होगा। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि 3p2 क्यों नहीं यहाँ पे हो सकता। मैं इसको रेज कर सकता हूँ पहले, बाय द वे, अगर कोई नोट कर रहा है तो मैं पहले उसको पूछ लूँ। शुड आई रेज इट? जी सर, रेज कर ओके, दो। ठीक है। अच्छा, अहमद, आर यू देयर? यस यस। ओके अहमद, देखो जब हम वहाँ पे हम थे ना, तो मैंने बात की थी कि जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। वो मैं इसकी बात कर रहा था, यानी वो जो मैंने सीक्वेंस अरेंजिंग की थी मैंने, वो जो एन था, एन डी था, ठीक है। मैं इसकी बात करता कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। इसमें ऑर्डर वो मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो लिहाजा ये बात तो पहले हम वहाँ पे हमने क्लियर कर ली थी। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम आ जाते हैं, ठीक है, जब हम यहाँ पे आए हम लोग, ठीक है, यहाँ पर जो हमने P2, हमने वहाँ P2 इसलिए नहीं किया क्योंकि देखो या तो N होगा या D होगा, ठीक है, या N होगा या D होगा। प्रोबेबिलिटी है जो यानी हम यहाँ पे या तो N रख सकते हैं या D रख सकते हैं। हम अगर यहाँ पे ये नहीं हो रहा है अहमद कि यहाँ पे ना ये N1 हो, फिर यहाँ पे अगर मैं P2 की बात करता हूँ तो P2 पे यहाँ पे होता है कि यहाँ पे N2 आ जाता। ये बात ये है। अगर प्रोबेबिलिटी अगर वो चीज़ होती तो वो कहता जनाब ये N1 D और N2, ठीक है, और यहाँ पे N2 D और N1। उसके लिए ना अगर मैं प्रोबेबिलिटी पे चला जाऊँ, अगर मैं प्रोबेबिलिटी पे चला जाऊँ तो प्रोबेबिलिटी के अगर सॉरी परम्यूटेशन पे चला जाऊँ तो परम्यूटेशन पे यार ये मसला है अहमद, ये इन दोनों को ना डिफरेंट ट्रीट कर रहा है। समझ आ गया, वो गॉट इट। डिफरेंट ट्रीट करेगा जिससे हम दोबारा इसमें वो उसको हमें इसको एक बनाना है, वो एक ही इवेंट है वो, ठीक है। एन और डी वो सेम है, वो उसमें एन और डी में भी वो डिवाइड करना शुरू कर देगा परम्यूटेशन से। ओके। अच्छा, इस फॉर्मूला को समझने के लिए ना, इस प्रोबेबिलिटी इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए मैं एक और आपसे सवाल करता हूँ। इस सवाल को हमेशा समझते हैं गाइस, मुझे बताओ, यू टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स, यू टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स, ठीक है, टॉस अ कॉइन 10 टाइम्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 7 हेड्स? 7 हेड्स निकालने हैं, ठीक है। आपने कॉइन 10 टाइम टॉस किया और आपकी जो सक्सेस है वो हेड्स है। X is success is getting heads. Success is getting heads. ठीक है, you need to give me the probability of finding exactly 7 heads. आपने मुझे ये बताना। एक मिनट ले लो। अच्छा, आदिल ने हाथ खड़ा कर लिया तो हम आदिल से पूछ रहे हैं। जी आदिल। सर इसको अगर कंप्यूट करना शुरू करें तो मैं बोलता जाऊं जो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, हाँ बोलो आदिल, हम ये तो कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास 10C2 आएगा। 10C2 10 आएगा। 10 टोटल हमारे 10 सॉर्ट ऑफ total ड्रॉज हैं draws हैं। और 2 आउटकम्स हैं। 2 10C2 आउटकम्स नहीं है, हाँ नहीं, यहाँ पे आपने गलती की। X is the number of मतलब 2 successes, वे 7 हाँ heads. It's not 10C2, it's 10C7, ठीक ठीक है। सही। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 है, उसको रेज Probability टू of पावर success 1/2 raised to power 7। 7, ठीक है। आगे
इसको फिर 1 माइनस 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अगेन प्रोबेबिलिटी सेम, ठीक है जी, और वो 10 माइनस 7 है क्योंकि ठीक है। n हमारे टोटल। ये आपका वो नंबर, यानी ये आपका, ये इसको प्लस कर लेंगे फिलहाल अभी, और हमारा वो नंबर हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करें, वैसे अगर आप नोट करो, जैसे मैंने उस केस में बात की थी, यहाँ पे अब आपके पास 10 स्लॉट्स हैं, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हेड्स आपके यहाँ पे भी आ सकते हैं, हेड्स आपके यहाँ पे भी आ सकते हैं, या फिर आपको होता है आपका यहाँ पे एक हेड आए, यहाँ पे आपके ये सारी चीज़ें चली जाएं, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन। अगर आप अब इसको निकालना शुरू करोगे ना, तो आपको सुबह हो जाएगी। डू यू सी द बेनिफिट ऑफ दिस फार्मूला? पहले तो जैसे 3 थे ना, तो बड़ी इजीली हम लोग मल्टीप्लाई 3 कर देते थे। नाउ यू सी कि इसका फायदा क्या है बाइनोमियल का। गाइस, Right, sir. That's clear, quite clear. Sir, only जो आपने पीछे practice question का जो one defective part वाला portion है, can you just solve with this theorem? Just it will take a हाँ, minute, please. बिल्कुल Please. बिल्कुल। जो पीछे जो क्वेश्चन आपने किया ना हाँ उसमें हाँ, ये हम सवाल देखते पिछली हैं। स्लाइड्स पे हाँ पिछली हाँ, स्लाइड्स बिल्कुल में बिल्कुल जी बिल्कुल। ये वाला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव पीस? जी वन ओके डिफेक्टिव ओके पीस ओके ओके। अच्छा दाऊद, हमारे टोटल जो इवेंट, जो हमारी टोटल वैल्यूज हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ वैल्यूज और रैंडम वेरिएबल कैन टेक, ठीक है। 3 वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना मुझे ना मैक्सिमम वैल्यू इट कैन टेक, मैक्सिमम वैल्यू मैं इसको स्लाइड में ठीक कर दूंगा अभी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू रैंडम वेरिएबल कैन टेक वो है हमारा 3, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू 3 ले सकते हैं। अब मैंने कहा फाइंडिंग एग्जैक्टली वन डिफेक्टिव पीस, विच मीन कि मेरी सक्सेस जो है वो x जो है वो है 1, वन है राइट ठीक है। यहाँ पे अब आ जाएगा 0.25 की पावर 1, ठीक है। और राइट यहाँ सर पे आ जाएगा 0.75 की पावर 2, राइट सर ठीक है। अब ये इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे, तो फिर हमारा, इसको आप करो, 3c2 है, ये 3c1 है सॉरी, तो ये बनेगा 3 1 फैक्टोरियल, और साथ यहाँ पे ये आ गया 2 फैक्टोरियल, और हमने राइट सर किया इसको तो ये 2 फैक्टोरियल बन गया, और ये बन गया हमारा 3 फैक्टोरियल ओवर 1/4 इंटू, ये हमारा 75 है तो ये 3/4 था, तो ये 9/4 बन जाएगा। और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 10 नंबर बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा 27 ओवर 4 इंटू 4, नहीं क्या करूँ मैं यार, यहाँ पे 16 बन जाएगा, ये 9/16 है, तो ये बन जाएगा 64, 27/64, राइट सर ठीक है। थैंक यू अच्छा गाइज, इसी तरह से आप इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपने इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू देखनी हो हेड्स वाले की, जैसे हमने अभी भी 10 दफ़ा किया हमने, ठीक है, तो आप यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई कर दो, गेटिंग 10 हेड्स, यानी सॉरी टोटल हमारे पास हमने 10 दफ़ा किया था और हमारी प्रोबेबिलिटी थी 1/2, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू 1/2, विच मीन्स कि ऑन एवरेज अगर आप 10 दफ़ा टॉस करते हो तो ऑन एवरेज 5 दफ़ा आपके हेड्स आएगा, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट गोइंग टू होल्ड फॉर स्मॉल नंबर्स, बट फॉर लार्ज नंबर दिस गोइंग टू बी द ट्रू रियलिटी। अगर आपने वो लैब प्रैक्टिस की हो जिसमें फाइनाइट हेड्स कर रहे हैं, आप देखोगे जैसे जैसे आप हेड्स की प्रोबेबिलिटी आप बढ़ाते जा रहे हो, आपका एवरेज जो एवरेज हेड्स आने की जो आपकी एवरेज आनी है वो बिल्कुल करीब आप जाते जा रहे हो एवरेज के, ठीक है। इसमें ये हो रहा है। फिर अगली थिंग इज वेरिएंस। वेरिएंस में आप क्या करते हो, आप नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हो विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेसेस और फेलियर्स, उससे आपकी वेरिएंस, उससे आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी आपको, ठीक है। नाउ लेट्स गेट टू अ ट्रिकियर क्वेश्चन। बाय द वे गाइस, मैंने ना आप लोगों ने एक वो पीडीएफ अपलोड किया आपके लिए, उसके ऊपर एक क्या कहते हैं, एलएमएस पे ना मैंने टेबल्स का एक फोल्डर बनाया। उस टेबल्स को फोल्डर के अंदर मैंने आपके लिए जो है ना अलग से उसमें वो चीज़ रखी है, उसमें मैंने एक टेबल रखा है मैंने आपके लिए, वो टेबल अब इस सवाल में हम यूज़ करेंगे अभी हम, ठीक है। तो तो
तो प्रोबेबिलिटी, अब ये सवाल जरा आप लोग कंप्यूट करो जरा आप लोग, पहले पहला पार्ट कर लो, पहले पहला पार्ट है पहले कर लो, ये दूसरे पार्ट्स में भी अभी आपसे सॉल्व करवाता हूँ अभी आपसे। आप पहले पहला पार्ट सॉल्व कर लो और उसका मुझे आंसर बता दो, फिर हम अगले आंसर की तरफ हम चलते हैं। साथ में अपने नोट्स के साथ खोल लूँ मैं। Sir, can you please explain this part of the statement in which it is written that known to have contracted the disease? जी, just give me 1 second यार। तो बेसिकली नॉट हैव कॉन्ट्रैक्टेड डिजीज यानी आपने यानी आप आपके पास के 15 लोग आए हैं, ठीक है, उन 15 लोगों में ना ये बीमारी है, ठीक है। तो बेसिकली दोज 15 आपने को 15 लोग पकड़े, उन 15 लोग बीमार हैं, ठीक है। अब उन 15 लोगों में ना, उन 15 लोगों में अब आपने कंप्यूट करना है कि उनमें से कितने लोग बच सकते हैं। एक यूनिवर्सल प्रोबेबिलिटी मैंने आपको दे दी है कि उस प्रोबेबिलिटी से सिर्फ 40% लोग बचे। अगर 100 लोग तो 100 में से 40 लोग बच जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक 15 के लोग निकाल के दिए हैं, आपको एक 15 लोग आपके सामने आए हैं, ठीक है। अब आपने उन 15 में से आपने कंप्यूट करना है कि यार उनमें से 5 लोग बचेंगे, उनमें से 5 लोगों के बचने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक पूरे 5 की। एम आई क्लियर हसन? So, still trying to figure it out. यानी टोटल 15 है आपके पास, टोटल लोग आपके पास 15 हैं, ठीक है। उन 15 में से आपने Right. 5 आपने सर्वाइव करवाने हैं, Right, उनकी probability. उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा यार, मेरे पास ना अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो अगर आप में से कोई इसको कैलकुलेट कर ले, अभी जैन मुझे बता रहा है, आई एम थिंकिंग कि ठीक होगी। इट्स जी जैन ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। मेरे पास नोट पड़े हुए हैं, मैंने नोट्स में साथ साथ देख लूँगा। तो जी इट्स 0.18। यार अगले बंदे मरने वाले हैं, तुम आगे खुशियाँ बना रहे हो जैन, यार कुछ तो ख्याल करो यार। तो उन 15 में से जो एग्जैक्टली 5 बचेंगे ना, उन पाँच में जो बचेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी 18% है, ठीक है। वो जो 15 में से हमने एग्जैक्टली 5 सर्वाइव करवाए यूजिंग बायनॉमियल, क्योंकि या तो बचेंगे या अल्लाह ना करे उनको दे विल बी एक्सपायर्ड। तो दो दो केसेस हैं, ठीक है। उस केसेस में अगर आपने निकालना है तो आपके पास एग्जैक्टली 5 को सर्वाइव करें केस आप कैसे निकलेंगे, ठीक है। अगला जो पार्ट है ना गाइस, वो ये बड़ा खींचने वाला है हमें, ठीक है। अगला पार्ट नहीं यार, आदिल, आई अप्रिशिएट योर आंसरिंग सेशन, लेकिन ना ये यहाँ पे ना अब एक थोड़ा सा ना मसला है। एटलीस्ट 10 पीपल सर्वाइव, ठीक है। यानी इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी का, अगर मैं इसको फंक्शन की तरह लिखूँ मैं इसे, तो मैं लिखूँगा पी प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 10 पीपल सर्वाइव, ठीक है। अब अगर 10 लोग सर्वाइव कर रहे हैं
और 10 लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इवेंट है ये कम्प्लीमेंट किसका है? दिस इज कम्प्लीमेंट ऑफ 1 माइनस पी एक्स लेस देन 10। यानी अगर आप इस इवेंट में से जिसमें 9 लोगों से, जिसमें 10 से कम लोग बच रहे हैं, अगर आप उससे प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगे तो आपके उस केस में एटलीस्ट 10 पीपल विल सर्वाइव, एटलीस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ना यार अब एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग एकदम से परेशान हो जाओगे, लेकिन घबराना नहीं है क्योंकि हमारे पास इसका भी सोल्यूशन है। और ड्यूरिंग द क्विज भी यू विल हैव दी, आपके पास उस टाइम भी वो होगा, एक टेबल होगा, तो यू कैन यूज अ टेबल एट दैट टाइम। ठीक है, इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है 1 माइनस पी एक्स डबल इक्वल टू 1। अच्छा, ये स्टेटा में थोड़ी है, एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस तक 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 पी एक्स इज इक्वल टू 1। we need to find the probabilities, we need to find the probabilities of all these events। एग्जैक्टली एक बंदा बचेगा तो कितना होगा, 2 बंदे बचेंगे तो कितना होगा, 3 बचेंगे तो कितना होगा, 4 बचेंगे तो कितना होगा, 10 बचेंगे तो कितना होगा। हमें एक एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है। डू यू सी हाउ टीडियस दिस टास्क इज? इतना इजी नहीं है। इंटीग्रेशन भी नहीं यहाँ पे हम करेंगे, उसकी वजह बेसिकली ये है, आदिल आदिल डिस्क्रीट, हम डिस्क्रीट के अंदर, वी आर नॉट इन कंटिन्यूअस थिंग। अभी हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हम गए नहीं, अभी हम लोग अभी हम डिस्क्रीट केस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रीट केस में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ टेबल। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी चाहिए, वी नीड द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट हो और 9 तक जाए। ठीक है, सॉरी इसमें 0 भी तो आता है, इसमें 0 भी है, कोई नहीं बचा। ठीक है, उसमें 0 से हम स्टार्ट हुए और हम 9 तक जाएंगे। हमें सब की हमें हमें सम लेना है। ठीक है, सम लेने के लिए अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पे आपका स्टैट्स का पहला लेक्चर शुरू हो रहा है, हम डिस्ट्रीब्यूशन, हम टेबल की तरफ जाएंगे। ठीक है, और हम टेबल को जाके देखेंगे कि टेबल में क्या होता है। ओहो, मैंने अपनी रिपोर्ट खोल ली है, तो मुझे भी काम नहीं है। टेबल्स, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, वो मेरी रिपोर्ट खोल रहा हूँ। मैं अपनी रिपोर्ट तो बाद में काम करूँगा। गैस ये देख लो, ये हमारे पास ना वो है टोटल, एक फंक्शन दिया है। मैं दोबारा आपके पास आप वापस लेके चलता हूँ आपको उधर। और साथ हम ये टेबल खोल के रखते हैं। ठीक है, अब जो मैंने पहले फंक्शन आपको ड्रॉ करके दिया था, जो मैंने पहले फंक्शन आपको बताया था, वो आपका ये फंक्शन बन गया। अब उसने कहा एटलीस्ट 10 बचेंगे। ठीक है, 10 का मतलब बताऊँ क्या है? 10 का मतलब बेसिकली ये है कि आपका जो फंक्शन बनता है, नोटेशन किधर गई है? एटलीस्ट 10 बचने का मतलब ये है कि पी एक्स is greater than or equal to 10, which means is this 1 minus p x is less than or equal to 9। ठीक है, इसका मतलब ये है, जो अभी हमने सारे मैंने अलग अलग फंक्शन लिखे थे, मैंने सबको इकट्ठा कर दिया। और यहाँ पे अगर आप लोग नोट करो, इसने भी फंक्शन मुझे यही दिया हुआ,
1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। इसने खुद ही सबका सम यहाँ पे किया हुआ है। दिस टेबल इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा एन क्या है गाइस इसके अंदर? व्हाट इज माय एन? मेरा एन क्या है गाइस? हाउ मेनी पेशेंट्स आर देयर? 15, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ मैं एन 15 पे आ जाऊंगा, ये मेरा एन 15 है, ठीक है। ये मेरा एन 15 है। मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है गाइस? व्हाट इज माय प्रोबेबिलिटी? इट्स 0. प्रोबेबिलिटी क्या है डिजीज की सक्सेस की? प्रोबेबिलिटी निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4, 0.4। ठीक है। अब और मैंने कितने लोगों को सर्वाइव करवाना है? मैंने सर्वाइव करवाना है 9 लोगों को। आई नीड टू सर्वाइव 9 पीपल, ठीक है। इस केस में अगर 9 या 9 से कम लोग जो, तो गाइस यहाँ पे 0.40 को देखो और यहाँ पे नीचे आओ, ये इसने दी हुई है 0.966, ठीक है। 0.966 ये नंबर यहाँ से हमें लेके जाना। आपको समझ आ रही है मैंने क्या किया यहाँ पर? इसने 0.966 उसे निकाला कैसे है? मैं दोबारा फॉर्मूला आपके सामने दोबारा लिख देता हूँ। जैन सर ये जो टेबल है ये सिर्फ इसी स्पेसिफिक केस के लिए ना, नहीं कोई जनरल टेबल तो नहीं है ना? जी, ये क्यूमुलेटिव सर ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि जनरल टेबल तो नहीं है ना कि हर जगह पे ये यूज होगा सर? ये सिर्फ बाइनोमियल के लिए है। दिस Right, sir. टेबल इज ओनली फॉर बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज। देयर आर डिफरेंट टेबल्स। अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अपने टेबल्स हैं, टी टेबल्स अपने हैं, ठीक है। हर टेबल अलग अलग है, ठीक है। एक आप लोगों ने, हम नर्सरी प्रेप में याद करते थे कि 1 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा। यहाँ पे अब आप लोग बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज टेबल्स को अपने साथ साथ रखोगे। आप यहाँ पे रट्टा लगाना, बल्कि इनफॉर्मेबल टेबल्स को यूज करके अपने आप को काम आसान करें। हमार सर ये पी जो आपने टेबल में ये पी क्या कैलकुलेट कैसे हुए? ये पी जो है ना, देखो हमार, मैं इसके फॉर्मूले में दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ। ये पी एक्स रेस्ट पर 9 क्या है बेसिकली? ये पी रेस्ट पर एक्स 9 क्या है? पहले इसको मैं लिख लूँ पहले मैं। ये है पी एक्स डबल इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 और फिर आगे तक जाते जाते पी एक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये जो अब नंबर यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, इस नंबर ने ये किया कि इसने जितनी भी इस सारी प्रोबेबिलिटीज थी यहाँ पर, ये इनको इसने सम करके हमें यहाँ पे निकाल के दे दी, ठीक है। ये सम करता जा रहा है प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे 0.966 जो है ना, इसने हमें ऑलरेडी इन सब का सम दे दिया इसने। हमें यहाँ पे जाने और हमें इस नंबर को निकाल के लेके आना, जो कि 1 माइनस 0.966। जी हमारा आपका सवाल, आपका क्यूरी भी इसमें एड्रेस होगी। जी सर। तो ये सम यहाँ से निकला और हमने 1 माइनस 0.966 हमने निकाला, ठीक है। 1 माइनस 0.966 निकाल लिया और यहाँ पे हम आंसर निकाल लेंगे और वापस एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन रीडिंग दिस टेबल? लेट मी नो गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस, फिर मैं आगे चलूंगा। खदीजा। सर मेरा एक सवाल है इसमें तो इसमें ठीक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी 0.4 और 0.6 वगैरह की। व्हाट इफ वी हैव समथिंग लाइक 0.25? हाँ, तो हम उसे चेंज कर लेंगे। अगर 0.25 था तो मैं यहाँ पे, फिर अगर 0.25 होता तो फिर मैं यहाँ पे देखता इसमें, ठीक है। इस टेबल में 0.25 वैसे नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं एक और टेबल डाल दूँ जिसमें 0.25 भी हो। आप ये कह रहे हो कि 0.25 तो यहाँ पे है नहीं, मैं उसको देखूंगा कैसे? आप ये कहना चाह रही हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल। तो 0.25 के केस में वैसे एक तरीका जो सिंपल वो ये होगा गाइस कि अभी यहाँ पे 0.20 और 0.30 है ना, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 25 प्लस 30 का मिड पॉइंट क्या होगा? सॉरी 20 प्लस 30 का मिड पॉइंट क्या होगा? 25। तो आप इन दोनों का मिड इनकी एवरेज ले लो। अगर वो टेबल में वैल्यू नहीं मिलती तो आप उनकी एवरेज बीच में ले सकती हो। ठीक है थैंक यू सर। ठीक है जी हसन। Sir, I have a suggestion.
जी प्रॉब्लम जो है वो एक आ रही है, वो हम हमारे एंड पे वो ये है कि हम जो स्टेटमेंट है ना, we cannot actually attribute that statement to the appropriate technique. Let's say कि अभी हमने ये देखा कि binomial theorem की एप्लीकेशन थी, लेकिन हमारे माइंड जो है वो कंफ्यूज कर रहे थे इसको कॉम्बिनेशन के साथ। हाँ और इसी तरह फिर परम्यूटेशंस के साथ भी है, पार्टीशंस के भी क्वेश्चन है, और ये अभी बायनोमियल के चल रहे हैं, आगे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी आएंगी। सो व्हाई इफ यू कैन डिजाइन ए पर्टिकुलर एक्सरसाइज जिसमें हम एटलीस्ट क्लासिफिकेशन की एक्सरसाइज करें विद क्लासिफिकेशन पीएस, के एक्सरसाइज, कि हम आपको यानी हम स्टेटमेंट जो है ना, लेट्स से कि 5 स्टेटमेंट्स या 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, और स्टूडेंट जो है वो जिनको जिन स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है वो भी थ्रो इन करें क्वेश्चंस, एंड देन वी डू ओनली दिस स्पेसिफिक एक्सरसाइज के जिसमें हम उन स्टेटमेंट्स को उनकी अप्रोप्रिएट टेक्निक्स के साथ एसोसिएट करें। लेट्स से कि एक क्वेश्चन को पार्टीशन से सॉल्व करना है, तो फिर वो हमें पता लग जाए कि दिस मे अपेरेंटली लुक लाइक कि आपको शायद जो है वो परम्यूटेशन लगाना है, बट दिस एक्चुअली रिलेट्स टू द पार्टीशन क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें बंदा गुम जाता है ऑब्वियसली। मैं समझ सकता हूँ। बेसिकली मैं हसन, मैं इस चीज़ पे आता हूँ। मैं क्लास को अभी एंड कर लूँ, मैं फिर मैं इस चीज़ पे मैं आता हूँ। ठीक है, मैं इस पे डिस्कस करता हूँ भैया सबसे, करना करो। राइट। अच्छा, क्योंकि मैं एक और सवाल मैं ये आखिरी पार्ट करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ना ये आखिरी पार्ट मैं आखिरी सेट मैंने भी करवाऊंगा, लेकिन मैं ये आखिरी पार्ट मैंने करवाना चाह रहा हूँ इसका, क्योंकि ना थोड़ा सा ना ये इसमें भी एक टीडियसनेस है भी इसके अंदर। तो I'll come to your question just a while. सर ये सॉल्व्ड है अब, ये 0.966 जी, इज द आंसर। 1 माइनस 0.966, तो ये आपका आंसर निकलेगा 0.038। ये आपका आंसर है 0.0338। ये आपका आंसर। और अब इसको हम बाइनोमियल में लेकर नहीं जाएंगे जहां हम वो बाइनोमियल ये तो में probable- बाइनोमियल में जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्योंकि देखो आपने करना क्या था, आपने दाऊद करना क्या था कि आपने सबके बाइनोमियल निकालने थे। आपने x0 का भी आपको निकालना पड़ना था, 1 का, 2 का, 9 तक का। ठीक है, आपको सबका निकालना था। जो ये फार्मूला मैंने ऊपर निकाला था ना आपके लिए, तो जो था फार्मूला n x, और साथ फिर यहाँ पे था आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और साथ 1 माइनस पी इंटू एन माइनस एक्स। ये आपको ना, ये वाला फार्मूला आपको ना इन सब केसेस के लिए लगाना था आपको, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 9 के लिए। ठीक है, आपको फिर इनको सम करना था, और सम करके आपके पास ये आंसर आना था 0.966। ठीक है, अगर तो नंबर्स छोटे हों, 2 या 3 केसेस निकालने पे तो आप सम कर सकते हो, लेकिन इसमें 9 केसेस थे। ठीक है, 9 केसेस को बचाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने आपको एक टेबल, आपको CDF दे दिया। याद है, मैं CDF प्लस करता जाता है प्रोबेबिलिटी को। CDF के अंदर यहाँ पे मैं वो प्रोबेबिलिटी से दी हुई है हमें। हमारे पास पता है कि हमारे टोटल केसेस n हमारे 15 थे। हमने ऑलरेडी वो डिसाइड किया हुआ, हमने देखे थे 15 थे। उन 15 में हमने कहा कि हमने 9 लोगों को हमने अगर हम यानी एटमोस्ट 9 पीपल सर्वाइव करें तो क्या होगा, उसमें हमने एटमोस्ट 9 की हमने प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ से निकाल दी 0.966। ये इसने खुद ही सम करके हमें दे दिया। वी डू नॉट नीड टू टेक दैट सम अगेन। राइट सर, डाउट समझ आ रही है कि हमने वो ये नहीं बैकेंड पे नहीं, हो रहा है। अंडरस्टूड, या ये अंडरस्टूड। बाइनोमियल के अंदर ब्रैकेट में ये काम हो रहा है अभी भी, लेकिन हमने वो टेबल में उसने ऑलरेडी निकाल के दिया बस। राइट सर। अच्छा, अब ये दोबारा मैं इसको ना एंट्रेशन बंद करके ना मैं इसको दोबारा इसको ही दिखा लूँ। यहाँ पे ये फार्मूला देख लें आपको। ये फार्मूला वही कर रहा है, उन सबका सम ले लेता है जो मैंने वहाँ भी आपको दिखाया था कुछ देर पहले। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है जनाब, फ्रॉम 3 to 8 सर्वाइव। ठीक है, कि यानी 3 बच सकते हैं, 4 बच सकते हैं, 5 बच सकते हैं, या 6 बच सकते हैं, या फिर 8 बच सकते हैं। ठीक है, 7 या 8, यानी इनमें से हमने इस तरह से हमने उस पर केस को रखा। उस केस को हम लोग यहाँ पे जो है मैं इसकी वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी 3 x
प्रोबेबिलिटी इस तरह से हमने सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी डाला है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्योंकि ये CDF हम दोबारा CDF में अभी हम दोबारा हम CDF में होंगे और हम इसी टेबल को हम दोबारा भी हम देख रहे होंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे अब हम हमने प्रोबेबिलिटी माइनस करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसको अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो ऐसा बनेगा x लेस देन 8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2। सॉरी गाइस, एक मिनट मुझे दो। आपने इसकी प्रोबेबिलिटी अब कंप्यूट करनी है आपने, ठीक है। x से 3 में जाने के लिए आपने x और ये 3 और 8 को निकालने के लिए आपको इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिंपल x और 8 की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर लोगे ना, ये वाली प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर लोगे यहाँ तक, ठीक है, तो ये आपको उसमें ये दो लोग भी शामिल हैं। हमें इनको निकालना है, हमें इनको निकाल के हमें सिर्फ ये निकालना है नंबर, ठीक है। तो 0.985 से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है। इसको हम दोबारा भी अगली क्लास में हम देखेंगे और फिर हम इस पर जो है इस पर और हम डिस्कशन अभी हम कंटिन्यू करेंगे। यानी मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटीज, पहले हम इस सवाल को दोबारा में देखेंगे, दोबारा इसको फाइनल नजर मारेंगे इसके आखिरी पार्ट को, और फिर हम लोग आगे फिर हम मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटीज पे जाएंगे और फिर हम उससे आगे मूव ऑन करेंगे। तो दैट्स द टारगेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। आदिल, सर अगर ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं तो हमने N15 क्यों नहीं लिया, 12 क्यों लिया? N15 12 कहाँ पे लिया मैंने आदिल? सर ये आप टेबल पे देखें n इज इक्वल टू 12 से आप कंप्यूट कर रहे हैं। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी यहाँ पे गलती है, 15 ही है ये, मैं ऊपर चला गया हूँ, ये 15 ही है। राइट सर। वो यही टेबल है, हम यहाँ से देखेंगे 0.996 को हम यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है। सॉरी 0.905 को हम यहाँ से माइनस करेंगे, मुझे ये एरिया निकालना चाह रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, यार कल मैंने ऑफिस आ सके थे, बच्चे बहुत कम आए थे। मैं एक हसन का फीडबैक अभी आया था, हसन चला गया कि हसन है भी क्लास? अच्छा भैया, अच्छा भैया, मैं चेक कर लूँ। अच्छा, तो चलो मैं ये क्लास की रिकॉर्डिंग को बंद करूँ, नहीं तो वरना क्लास की रिकॉर्डिंग फिर बढ़ती जानी है। जैन, आपकी क्लास रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोई से रिलेटेड क्वेश्चन है? नहीं सर, रिक्वेस्ट से रिलेटेड था। अच्छा ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।